خداوند میری جان کا محافظ ہے، میں خوش دلی کے ساتھ تیرے لیے قربانیاں گزاروں گا۔ اے خداوند میں تیرے نام کی خوبیاں بیان کروں گا، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور روح القدس کی شراکت اب سب کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے اور زبور اور گیتوں میں بھی گاتے ہیں کہ میں خوش ہویا جد مینوں آکھن لگے کہ آؤ یہوہ دے۔ آج ہمارے لیے بہت ہی خوش آئند اور ہمارے لیے برکت والی صبح ہے کہ جب ہم آج کے دن کا آغاز خدا باپ کے الہی نام سے کرتے ہیں، اور آج خاص طور پہ ہمارے درمیان ہمارے بہت ہی ہر دل عزیز ہمارے کیپوچن فرائرز موجود ہیں۔ خاص طور پہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں بردر وکٹوریس کا کہ ہمارے جنرل ڈیفینیٹر ہیں، اور ان کے ساتھ ہی بائیں جانب جو ہے جو کہ کیپوچن فارمیشن کے انچارج ہیں روم میں، اور فادر وکٹوریو جو کہ جنرل کونسلر ہیں، اور یہ روم سے دو ہمارے فرائرز ہمارے فادر کاہن جو ہیں ہمارے درمیان آئے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے درمیان جو ہیں ہمارے حضرت عزیز فادر کسٹس فادر فرانسس صابر جو کہ کیپوچن جماعت کے پاکستان میں منتظم اعلیٰ سردار فادر ہیں۔ تو آپ سب کی بھرپور تالیوں میں ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کی تالیاں بتائیں کہ آپ کو اس لیے خوش کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہمارے لیے ایک اور بہت بڑی برکت ہے کہ فادر وکٹوریو جو ہے چند دن پہلے ہی بشپ کے عہدے پہ فائز ہوئے۔ اور یہ اپنے ملک انڈونیشیا میں بشپ کے فرائض اور بشپ کے عہدے پر فائز ہوتے ہوئے اپنے فرائض انجام دیں گے، اور یہ ہمارے فرائض جو ہیں بہت ہی قابل ہیں، اور خدا نے ان کو بے شمار صلاحیتوں سے خوبیوں سے نوازا ہے، اور ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں اقبال ٹون کی کلیسیا کے لیے سینٹ جان فور سیکنڈ پیرش کے لیے بہت ہی بڑی برکت ہے کہ بشپ کے نام کا منتخب ہوتے ہوئے جو ہے یہ ہمارے درمیان آج موجود ہیں۔ جب ہم خدا کے گھر میں آتے ہیں تو آج خدا کا پاک کلام ہم سب کو کیا فضل عطا کرتا ہے۔ آج کی پہلی تلاوت جو کہ حکمت کی کتاب میں سے ہے کہ خدا جو ہے ہمیں توبہ، تبدیلی، پشیمانی اور اثر نو پیدا ہونے کا فضل عطا کرتا ہے، اور آج جب ہم پہلی تلاوت سنتے ہیں حکمت کی کتاب میں سے کہ خدا بار بار ہمیں موقع عطا کرتا ہے، آج کی دوسری تلاوت جو کہ رومیو کے نام خط ہے، اور روح جو ہے خدا کا پاک روح ہمارے لیے آہیں بھر بھر کر محنت کرتا ہے تاکہ ہم مسیح میں ہو کر زندگی گزاریں، خدا میں ہو کر زندگی گزاریں۔ اور آج کی انجیل مقدس میں زبان کی تفصیل سنیں گے کہ ابن انسان اچھا بیج بوتا ہے اور دشمن جو ہے وہ آ کر زبان ہو کر چلا جاتا ہے، بس کٹائی کے دن تک
मालिक कहता है कि दोनों को इकट्ठा बढ़ने दो। और जब आज ये तफसील सुनेंगे, यीशु की बातें सुनेंगे, यीशु का कलाम सुनेंगे, तो अपने आप को तैयार करें, खुदा का फजल मांगे, खुदा का रहम मांगे कि आज की ये खास इबादत जो है हम सब के लिए बाबरकत ठहरे और हम खुदा में होकर जिंदगी गुजारें। आए बड़े ईमान के साथ आज की सकदस कुर्बानी में शामिल होंगे। अजीजों, आज की ये अक़दस कुर्बानी हम ख़ुसूसी तौर पर खुदावंद की हजूरी में तमाम कैप्टन मिशनरीज़ के लिए गुजरानेंगे जिन्होंने आज से 75 साल पहले इस्लामाबाद लाहौर डायसीज़ की बुनियाद रखी और सियालकोट, नारोवाल, गुजरावाला, हाफजाबाद यहाँ पर से ईमानी बीज को पाकिस्तान के कोने कोने तक उन्होंने पहुँचाया। आज उन मिशनरीज़ को याद करते हुए जिन्होंने अपना देश, अपने बहन भाई, अपना सब कुछ हम सबको ज़िंदगी देने के लिए कुर्बान कर दिया। आए ये आज की अक़दस कुर्बानी हम उन्हीं मिशनरीज़ के लिए, उनकी उस मोहब्बत के लिए, उनकी उस कुर्बानी के लिए और उनकी अनथक मेहनत के लिए जो आज आपकी सूरत में हमें नज़र आती है, कलीसिया की तरक्की की सूरत में हमें नज़र आती है। आए उनके लिए दुआ करें और इसके साथ साथ हम दुआ भी करेंगे रेवरेंड फादर विक्टोरियस के लिए जो हमारे जनरल काउंसलर हैं और हमारे जो सरदार आला रोम में हैं ये उनके काउंसलर हैं, और फादर किलियन के लिए जो कि हमारे लेफ्टिनेंट जनरल यानी कि हमारे जो सुपीरियर मिनिस्टर जनरल हैं उनके काउंसलर हैं। हम इनके लिए दुआ करें और ख़ुसूसी तौर पर अपने मिनिस्टर जनरल रेवरेंड फादर रोबर्टो जर्मन के लिए दुआ करते हैं जो पूरी दुनिया में कैप्टन फादर्स की रहनुमाई करते हैं और उस ईमान को जो हमारे मिशनरीज ने हमें दिया हम उनके लिए शुक्रिया भी अदा करते हैं। आए बड़े सरों को झुकाते हुए खुदावंद की हजूरी को महसूस करते हुए अपने आप पर पशेमान हो, अपनी उन तमाम गलतियों और खताओं पर पशेमान हो जिन गलतियों और खताओं से हमने खुदा को और अपने बहन भाइयों को नाराज किया, हमने दूसरों के दिलों को दुखाया, हमने दूसरों के बारे में बुरी बातें की, हमने दूसरों पर शक किया, हमने मोहब्बत अमन फैलाने की बजाय हमने मोहब्बत की इनकारी की और अमन और सलामती की इनकारी की। मैं कादिर मुतलक खुदा और आप सबके सामने क्या करता हूँ कि मैंने अपने बातों और कामों इस दफ्तर से बेशुमार गुनाह किए हैं, इसलिए मैं मुकद्दसा मरियम हमेशा तुम्हारी सब फरिश्तों और मुकद्दसों और आप सबसे भी इल्तिमास करता हूँ कि खुदा हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करे। और कादिर मुतलक खुदा बाप हम सब पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों, गलतियों और खताओं को मुआफ करे और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे। ऐ खुदामंद रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ खुदामंद रहम कर। आए कोयल के साथ मिलकर ग्लोरिया करें। अपने बंदों पर रहम मेहरबान होके अपने करम के मुताबिक उन्हें कसरत से अपने फजल की नेमतें अता फरमा, ताकि उम्मीद, ईमान और मोहब्बत के जोश के साथ हमेशा इस फिक्र में रहे कि तेरे हुक्मों पर अमल करें। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से जो तेरे साथ रूह कुदस की वाहदानियत में खुदा है
اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے۔ ان کی خطاؤں کے بعد تو ان کو توبہ کی مہلت عطا فرماتا ہے۔ ہماری یاسوع کی پہلی تلاوت حکمت کی کتاب 12 باب 13 سے 16 اور 19 آیات مقدسہ۔ کیونکہ تیرے سوا کوئی خدا نہیں جو سب پر مہربان ہے، تاکہ تو دکھائے کہ یا ناراض فتویٰ جاری نہیں کرتا، کیونکہ تیری قوت تیرے عدل کا شروع ہے اور چنانچہ تو مالک کل ہے۔ تو سب پر شفقت کرتا ہے، کیونکہ تو اپنی قوت ان لوگوں کے لیے ظاہر کرتا ہے جو تیری قدرت کامل کا یقین نہیں کرتے اور جو اسے جانتے ہیں تو ان کی جرت کو شرمندہ کرتا ہے۔ پر تو جو اپنی قوت کا مالک ہے نرمی سے انصاف کرتا ہے اور بڑے صبر کے ساتھ ہم پر حکمران ہے، کیونکہ جب تو چاہے تو قوت سے کام کرنا تیرے اختیار میں ہے، لیکن تو نے اس طرح کے کاموں سے اپنی امت کو یہ سکھایا ہے کہ انسان دوست راستگاری کا فرض ہے، اور تو نے اپنے بیٹوں کے لیے اچھی امید رکھی ہے، کیونکہ ان کی خطاؤں میں تو ان کو توبہ کرنے کی مہلت عطا فرماتا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ روح خود ناقابل بیان آہیں بھر بھر کر ہماری سفارش کرتا ہے۔ ہمارے لیے آج صبح کی دوسری تلاوت مقدس پولس رسول کا خط رومیوں کے نام 8 باب 26 تا 27 آیات مقدسہ۔ اے بھائیو، روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے، کیونکہ جیسا چاہیے ہم جانتے ہیں نہیں کہ کیا دعا کریں، مگر روح خود ناقابل بیان آہیں بھر بھر کر ہمارے لیے سفارش کرتا ہے، اور وہ جو دلوں کا جانچنے والا ہے وہ جانتا ہے کہ روح کیا چاہتا ہے، کیونکہ وہ خدا کی مرضی کے مطابق مقدسوں کے لیے شفاعت کرتا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس بمطابق مقدس متی۔ مقدس متی کی انجیل اس کا 13واں باب 24ویں سے 43ویں آیت تک سنے گے۔ ایک دن یسوع نے ایک تمثیل لوگوں کے سامنے پیش کر کے کہا کہ آسمان کی بادشاہی اس آدمی کی مانند ہے جس نے اچھا بیج اپنے کھیت میں بویا، لیکن لوگ سو گئے تو اس کا دشمن آیا اور گیہوں میں زوان بو کر چلا گیا۔
जब वक्त पत्ते लगे और बालें निकली तब जवान भी जाहिर हुआ। घर के मालिक के गुलामों ने आकर मालिक से कहा, ऐ साहिब, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर जवान कहां से आ गया? मालिक ने उनसे कहा, किसी दुश्मन ने यह किया है। तब गुलामों ने मालिक से कहा कि क्या तू चाहता है कि हम जाकर उसे जमा करें? मगर मालिक ने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जब तुम जवान को जमा करो तो उसके साथ गेहूं भी उखाड़ दो। कटाई के दिन तक दोनों को इकट्ठा भरने दो कि मैं कटाई के वक्त काटने वालों से कह दूंगा कि पहले जवान जमा कर लो और जलाने के वास्ते उसके गट्ठे बांध लो, फिर गेहूं मेरे खत्ते में जमा कर दो। यीशु ने एक और तमसील उनके सामने पेश करके कहा, आसमान की बादशाही राई के दाने की मानित है, जिसे किसी आदमी ने लेकर अपने खेत में बो दिया, और वो सब बीजों से छोटा तो है, लेकिन जब बढ़ जाता है तो सब तरकारियों से बड़ा और ऐसा पौधा हो जाता है कि आसमान के परिंदे आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। यीशु ने एक और तमसील उनको सुनाई कि आसमान की बादशाही उस खमीर की मानित है, जिसे किसी औरत ने लेकर 3 सा आटे में मिला दिया, यहां तक कि वो सब खमीर हो गया। ये सब बातें यीशु ने हजूम से तमसीलों में कही और बिला तमसील उनसे ना बोलता था, ताकि जो नबी की मार्फत कहा गया है वो पूरा हो कि मैं तमसीलों के लिए अपना मुंह खोलूंगा, मैं बनाए आलम के असरार जाहिर करूंगा। तब वो हजूम को छोड़कर घर में गया और यीशु के शागिर्दों ने यीशु के पास आकर कहा कि खेत के जवान की तमसील हमें समझा। तो यीशु ने जवाब में कहा, अच्छे बीज का बोने वाला इब्ने इंसान है और खेत दुनिया है, और अच्छा बीज बादशाही के फर्जंद है और जवान बदी के फर्जंद है, और वो दुश्मन जिसने उसे बोया वो शैतान है, जो कटाई के वक्त दुनिया का आखिर है और काटने वाले फरिश्ते हैं। बस जिस तरह जवान जमा किया जाता और आग में जलाया जाता है, ऐसा ही दुनिया के आखिर में होगा। इब्ने इंसान अपने फरिश्तों को भेजेगा और सब ठोकर खिलाने वाली चीजों और बदकारों को उसकी बादशाही में से जमा करेंगे और उन्हें आग की भट्टी में डाल देंगे। वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। तब रास्तबाज अपने बाप की बादशाही में सूरज की मानित चमकेंगे। जिसके कान हो वो सुन ले। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारी खताएं मुआफ की जाए। दावत देता हूं पाकिस्तान में कैपुचिन बरादरी के सरदार फादर को, जो पूरे पाकिस्तान में तमाम तर कैपुचिन घराने की रहनुमाई करते हैं। खुदा ने हमारे इस काहिन को बेशुमार बरकतों से नवाजा है और खुदा की इन बरकतों में एक खुदा के कलाम का प्रचार है जो रेवरेंड फादर फ्रांसिस साबर ने अपने वालिद से हासिल किया है। फादर जी के वालिद बाबू साबर, जिन्होंने लाहौर डायसिस में मिशनरी काहिनों के साथ मिलकर खुदा का कलाम फैलाया और खुदा के कलाम का प्रचार लोगों तक पहुंचाया, ताकि लोग मसीही जिंदगी को अपनाते हुए यीशु जो जिंदगी देने वाला है उसे कबूल कर सके। इसी जोश के साथ ये खुदा का कलाम सुनाते हैं और खुदा के इन भेदों का इंकशाफ करते हैं, जिससे बेशुमार लोग फैज़याब होते हैं। आपकी भरपूर तालियों में मैं दावत देता हूँ कैपुचिन बरादरी के सरदार फादर रेवरेंड फादर फ्रांसिस साबर को कि वो खुदा के इस हिकमत को जो खुदा आज के कलाम में करता है हमारे साथ बांटे। जोरदार तालियों के साथ हम अपने फादर जी को दावत देते हैं।
عزیزو آج ہم خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں یہ موقع عطا کیا تاکہ ہم دل سے آج اس کو خدا مانے اور کہیں کہ تو ہی میرا خدا میرا خدا ہے. آج کے اس خوبصورت دن کے لیے کہ خدا نے 75 سال کے بعد جب کیپٹن بردرز کیپٹن فادر دلوال کیوڑا وہاں پر سے کافرستان تک جا کے خدا یسوع مسیح کی انجیل کی دعا دی. اسلام آباد ڈائسس کا اس وقت وجود نہیں تھا. ملی فادرز نے بعد میں آ کے اس ڈائسس میں بہت زیادہ کام کیا. پشاور اور جتنے بھی پہاڑ احمد آباد وغیرہ ان علاقوں میں خدا کا کلام سنایا, اس کا بیج بویا. اور اس طرح سے کیپٹن فادروں نے جنہوں نے سیالکوٹ کی دھرتی پر آتے ہی زندگی کا خدا کے کلام کا بیج بویا جو آج تنور بن چکا ہے. سب سے پہلے میں آپ سب کے لیے, آپ کے ایمان کے لیے, آپ کے خاندانوں کے لیے اور بزرگوں کے لیے بھرپور تعلیم میں خدا ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. On this special day, I wish to thank and praise God for all His blessings as we have among us our two brothers all the way from Rome to visit us, to see us. And this is the only parish where my brothers, Brother Victorious and Brother Gillian, they are celebrating Mass. آج وہ یہاں پر جب سے وہ آئے ہیں پہلا چرچ ہے جہاں پر وہ ماس ادا کر رہے ہیں. اس سے پہلے کہ میں مزید ان کے بارے میں کچھ بتاؤں, بردر وکٹوریس ہم اپنی جماعت میں چاہے فادر ہے چاہے بشپ ہے, we call each other brothers. ہم ایک دوسرے کو بھائی کہتے ہیں. بردر وکٹوریس کا تعلق جو ہے وہ انڈونیشیا سے ہے اور انڈونیشیا میں ہم جیسے کیپٹن بھائیوں کی طرح وہاں بھی بہت زیادہ کیپٹن بھائی ہیں. تقریباً 700 کیپٹن فادرز ہیں وہاں پہ. اور بردر وکٹوریس جو ہیں وہ ہمارے منسٹر جنرل فادر روبرٹو جینون جو کہ ہمارے سب سے بڑے جو پوری دنیا کے کیپٹن فادرز کے انچارج ہیں, روم میں ہیں, یہ ان کی کونسل میں ہیں اور مشاورات کی کونسل میں, اور انہی کے حکم سے وہ پاکستان آئے ہیں تاکہ وہ ہمیں ملیں اور ہمارے ساتھ مل کے وہ تمام چیزوں پر غور کریں جس سے ہم ترقی کر سکیں, اپنے لوگوں کی ترقی میں ہم اپنی خدمات سر انجام دے سکیں. فادر وکٹوریس جیسے ہی ان کو میں نے دعوت دی اور انہوں نے اپنا پروگرام بتایا, ساتھ ہی انٹرنیٹ پہ آ گیا, روم کی ویٹیکن کی ویب سائٹ پہ آ گیا کہ بردر وکٹوریس ہیز الیکٹڈ بشپ آف انڈونیشیا. اور بردر وکٹوریس ہمارے پاکستان کے انچارج ہیں, وہ سارے فادروں کے ہماری کیپٹن برادری کے وہ انچارج ہیں, اور اس میں بہت سارے ممالک ہیں جن کے یہ انچارج ہیں. یہ ہم سے بھی بڑے سردار اعلیٰ ہیں کیپٹن برادری کے, اور جس میں فلپینز آتا ہے, ملیشیا آتا ہے, انڈونیشیا آتا ہے, ویتنام آتا ہے, یو اے ای آتا ہے, پاکستان, اور اس طرح پاپوا نیو گنی, نیوزی لینڈ, بہت سارے ممالک ہیں جن کے یہ انچارج ہیں. Brother Victorious, we welcome you among us here in this parish. God bless you. Now, I would like to introduce you Reverend Brother Gillian. Brother Gillian جو ہیں یہ بھی منسٹر جنرل کے کونسلر ہیں اور بہت سارے ممالک کے یہ انچارج ہے جہاں پر جا کر یہ فادرز کی رہنمائی کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ بردر گلین پروفیسر بھی ہیں, ٹیچر بھی ہیں, اور روم کی جو پونٹیفیکل یونیورسٹیز ہیں ان میں پروفیسر بھی ہیں جس میں فارمیشن اور سائیکالوجی میں انہوں نے اسٹڈیز کی ہیں اور ڈاکٹریٹ کی ہے. بردر گلین پورے دنیا کے جتنے بھی ہماری سیمنریز ہیں جہاں پر ہم اپنے بردرز کی تربیت کرتے ہیں, یہ پوری دنیا کی سیمنریز کے انچارج ہیں.
और इतनी बड़ी पर्सनैलिटी आज हमारे दुनिया में मौजूद है। हम लोग ऊंचाई में यूरोपियन को सम्मान नहीं करते हैं। Let us reflect on the word of God. आज का कलाम मुझे यीशु क्या सुनाता है, यीशु क्या सुनाना चाहता है। जब मैं घर से निकला या घर से निकली, मैं क्या सोच के घर से निकला कि आज प्रोग्राम है। हम हर रोज क्या सोच के निकलते हैं, चर्च को निकलते हैं, क्या सोच के निकलते हैं? ऐसे बड़ी अच्छी गल है। जिन्हें हारमोनियम बजाना वो सोचता है तबले वाला पहुंचेगा नहीं। जिन्होंने चर्च की सफाई करने लगे जाके लाइटां लुटान ऑन की लेकिन नहीं। हर कोई अपने मकसद के नाम खुदावंद दे घर आंदा। लेकिन सबसे बढ़कर हमारा मकसद होना चाहिए, आज खुदा के मुंह से मेरे लिए क्या निकलने लगा है, आज वो मुझे क्या बताने लगा है, आज वो मुझसे क्या चाहता है, आज वो मुझसे क्या चाहता है। और आज वो आपको एक बहुत बड़ी बात सुनाना चाहता है कि आपने जिंदगी के बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखे हैं। आपने एक एक ईंट इकट्ठी करके अपने घर बनाए हैं। आपने एक एक टैली पैसा इकट्ठा करके चिड़िया की तरह एक एक तिनका इकट्ठा करके अपने घोंसले बनाए हैं। आपने उस घोंसले में, उस मेहनत और मोहब्बत के महल में अपने बच्चों के लिए एक राहत, एक सुकून, एक इत्मीनान की जगह बनाई है। और माँ बाप बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, थक जाते हैं, परेशान रहते हैं कि मैंने इस घर को कैसे बचाना है, मैंने इसकी किस तरह से हिफाजत करनी है। बारिश आए छत पे चढ़ के देखो, मैं घर से सारा छोटा हाँ, मेरी ड्यूटी होती बारिश में नमी कहते चल छत पे चढ़ प्रणाली चेक कर। माँ बाप को फिक्र होती क्यों? क्योंकि एक महल बनाया है, चाहे छोटा सा है, एक कमरे का है, 2 कमरों का है, 3 कमरों का है, लेकिन मेरी जन्नत मेरा घर है क्योंकि मैंने अपने बच्चों के लिए बनाया। और बहुत अगर आपके इस जन्नत में कोई दीवार तोड़ दे तो क्या होगा? कोई उसको नुकसान पहुंचा दे तो आपका क्या हाल होगा? मजाल है कोई साड़ा गोवा ना मिले। खुदा ने भी इस दुनिया को इसी प्यार से, जिस तरह आप अपना खानदान बना रहे, खुदा ने भी अपना खानदान बनाया। आप सब उसके बच्चे हैं। आपके लिए उसने क्या जतन किए हैं, आपके लिए उसने क्या कुछ नहीं किया, यहां तक कि अपना बेटा आपके लिए कुर्बान कर दिया। आपके लिए, हम सब के लिए कुर्बान कर दिया। और क्यों कुर्बान किया? तालियां नहीं जानी, चुप करके सुनना, आज कुछ सुन के जाना का, ठीक है? उसने अपना बेटा कुर्बान कर दिया। पुत्र कौन किने वास्ते कुर्बान कर देने? है कोई मां क्या अपना पुत्र कुर्बान? जब पुत्र कुर्बान हो जाए या बाप जब पुत्र कुर्बान हो जाए। इन बेटों को देखें, ये बेटे हैं फादर आजम, फादर मैसम, फादर विक्टोरियस, फादर किलियन। ये किड़ियां मावां दे पुत्र ने। चल पुत्र लेला लाडा दा पलिया हुन कुर्बान हो। कौन है ये? माओ के बेटे हैं, जिन माँ बाप ने अपने घरों को इतना खूबसूरत बनाया कि वो घर आबाद रहे। दुआएं करते हैं सुबह उठते वक्त, खुदाया तेरा शुक्र है रात सौखी लंघे। फिर शाम को, फिर सुबह का शुक्र अदा करना, कहते दिन भी पाक रखी। शाम को घर आके सारे दिन के लिए शुक्र अदा करना कि यार आज राज एक्सीडेंट देखे तो मैं घर आ गया, खुदा तेरा शुक्र। हम अपने बच्चों के लिए खुद कुर्बान होते हैं, इसलिए कि बच्चे कुर्बान ना हो। माँ बाप तवज्जो करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन बच्चों को कुर्बान होने नहीं देते। लेकिन ये कैसा बाप है जो आसमानी बाप है, अपना बेटा कुर्बान कर दिया। और इस कलीसिया में से ही बेटों को चुन लिया, माओ को इतनी हिम्मत दे दी कि बेटा जा कौम के लिए कुर्बान हो। क्योंकि फादर बनना, काहिन बनना, कैपुचिन बनना
मतलब क्या है? अपने आप को सलीब पे कुर्बान करना है। हम हर काम करने में फायदा देखते हैं, हर काम जो फायदा नहीं देखना चाहिए, हर काम जो फायदा कभी नुकसान वाला भी काम करना चाहिए जिससे दूसरे का फायदा हो जाए। ये सोच मेरी नहीं है, खुदा दी है। हम दूसरों का फायदा करने के लिए अपना नुकसान करें। कौन है जो करता है? मुकद्दसा मां मरियम इसलिए आज तक और हमेशा तक इसको औरतों में मुबारक है, क्योंकि बेटा कुर्बान करने वाली बड़ी कम होती है। खुदा ने ये मोहब्बत का बाग लगाया। इंसान, हमारे खानदानों में कड़वा बीज किसने बो दिया कि भाई भाई से लड़ रहा है, बेटा मां से, मां बेटे से, बेटा बाप से, बाप बेटे से, बेटी बाप से, बेटी मां से, सारे लड़ रहे हैं। कोई एक दूसरे मामले रोज के चले जाते हैं। फादर रहमत राजे का शेर है, समझ आ गई ते सही है। असी रल के लाया सी वान दा बूटा, जेडे तो बुजुर्गों ने पता वान दा बूटा क्या है। अही रल के लाया सी, किन्हां ने लाया? असा किंज लाया? रल के बरादरी इकट्ठी हुई, वान दा बूटा लाओ फायदेमंद है। असी रल के लाया वान दा बूटा ते वेड़े विच बंदूक हो गई। समझ लगी कि बीजी है ही जनाब फलदार चीज ते बंदूक हो गई। खुदा भी आज ये कह रहा है कि मैंने जहां पर मोहब्बत बोई है वहां पर कड़वा बीज किसने बो दिया? जिसको मैंने मोहब्बत से पैदा किया है वो इतना खतरनाक कैसे हो गया कि इंसान ही इंसान का दुश्मन बन गया है। इंसान ही, हमारे खानदान को कौन दुश्मन बना है? हम ही बने। घर के होने ढाना ही ढाना है। अब्बे जी मनिए ना मनिए, अम्मी जी मनिए ना मनिए, हमारे खानदान बर्बाद हो रहे हैं। हमारे खानदान में दुख हैं, तकलीफें हैं। हम अपने बुजुर्गों की, बड़ों की बातों को नहीं सुन सकते। अब्बा दादा तू आउटडेटेड है, होन ते एंड्रॉइड का जमाना है ना। जिन्नी मर्जी साइंस तरक्की कर जाए, अखलाकियात की तरक्की साढ़े बुजुर्गों की आनी। जिंदगी और मोहब्बत की तरक्की हमारे बुजुर्गों से ही हमें आनी है। आज हमने खुदा यीशु मसीह इस तमसील पर गौर करना है कि खुदा ने इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई है। फादर आए हैं, वो कह रहे हैं पाकिस्तान इज ब्यूटीफुल कंट्री, लेकिन कोई पाकिस्तान आने के लिए तैयार ही नहीं है। कहीं ना आओ पाकिस्तान, मैं पिछले महीने रहा, मैं कह जी कम टू पाकिस्तान, कहते जी क्यों? मैं कहा बड़ा सोहना है, कहते तस्वीरें देख लांगे। आना क्यों? कि खुदा ने धरती बड़ी सोहनी बनाई है, लेकिन लोगों को डर लग रहा है। लेकिन लोगों को जिथे वजदी सी भूख प्यार दी वंजली गई गवाच, जिथे वजदी सी भूख प्यार दी ओ वंजली गई गवाच। रांझे दे सबे वीर भरा भुल गए इस जाच, धरती ते लहू वसिया कबरां पईयां चों, प्रीत दियां शहजादियां च विच मज़ारां रोण। अज सबे कहतो बन गए, घर नूं तोड़न वाले, बर्बाद करने वाले। अज सबे कहतो हुस्न इश्क दे चोर। अज कित्थों लियाइए लब के वारिस शाही को, जो मोहब्बत की बात करे, प्यार की बात करे, जो इकट्ठा रहने की बात करे। उसी मेरी जो यीशु को आया ना क्या जो करना इकट्ठे हो जाओ। जैसे बाप मौका देता है, हम भी एक दूसरे को मौका दें। उसको बाप वही कह सकता है जो बाप की तरह माफ करना जाने। हम बाप उस तभी खुदा को कह सकते हैं अगर हम भी दूसरों के लिए कुर्बानियां देना सीखें। वरना तारा तुरा से साड़ियां दुआवां हट जाते, फिर कहते भाजी बड़ी दुआ की सी, खुदा साड़ी सुनते ही नहीं। मैं तारा तुरा हड़ा होके अड़ी है अपनी उद्देश्य लिए। जब दिल में हम दूसरों के लिए मोहब्बत नहीं रखते, दुआ फिर कांदी, गोडे रगड़न की जरूरत कांदी, मत्थे रगड़न की जरूरत कांदी। जब मैं बाप जैसा और बाप मुझ में, यीशु क्या कहता है? जिसने मुझको देखा उसने मैं और बाप एक हैं। काश के लोग सानू ही कहें यार थोड़े से खुदा लगता, थोड़े चाहिए यीशु वेंदे हैं, थोड़े चाहिए मसीह देखने, थोड़े ना सिर्फ मसीह नहीं है, यीशु थोड़े च रहता है। मसीह मेरे को अज खुदा दे इस बात साडे खानदानां च जिहड़ी मोहब्बत दा बीज बोया, साडे खानदान खुदा दी मोहब्बत दा एक बीज ने।
इन्हां बीजां नूं ज़बान ते कौड़े दाणियां तो बचा के रखो। कौन रात दे अंधेरे च जो तुहानूं पता नहीं तुहाडे बच्चे तुहाडे को खो के लै जांदा, तुहाडे बच्चियां नूं गलत राह ते ला दिंदा, तुहाडे अपने तुहाडे हथों इंज निकलदे ने जिवें मुट्ठी विचों रेत निकल जांदी। जिन्ना मर्जी कुटो रेत निकल जाती। आपके बेटे बेटियां आपके कंट्रोल में नहीं है, जिनके लिए आप दिन रात मेहनत करते हैं, उन्होंने खुदा किसी और को बनाया है। आए अपने बच्चों की तरबियत करें और फादर आजम और फादर मैसन के साथ मिलकर उनकी मसीही तालीम में अपना अहम किरदार अदा करें। अपने बच्चे बचाइए। अगर मसीहत नूं आने वाले दौर च लैके जाना है, अही तो मसीही हैं ना। आज जितने भी हमारे बुजुर्ग यहाँ पे बैठे हैं ये जानते हैं कि मसीहत कैसे फैली है, इन्होंने कैसे कैसे कुर्बानियां दे के मसीहत को प्रवान चढ़ाया है कि साढ़े बच्चे इस तैयारी से हैं कि सारे शाहरुख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ? हमने अपने बच्चों को जिंदगी देनी है। मसीह ने आओ खुदा की इस खेती में ज़ुबान ना खोने दे, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचें और आंख खोल के रखें कि कड़वा बीज आपके बच्चों में ना हो जाए, और अपने बच्चों को बड़ी मोहब्बत के साथ बड़े प्यार के साथ उनकी तरबियत करें ताकि खुदा की पाक कलीसिया जब वो बादलों पर आए तो कहे आज भी इकबाल टाउन वाले हो, तुसी कामयाब हो, तुसी अपने ईमान से मजबूत हो और आपका इस धरती पे अभी सारे पिंड छड़ के आए रहते, सारे पिंड छड़ के आए। मैं जो पिंड जाना ना अपने नारोवाल और अभी हाँ कितने गया, कितने हो गया और कितने गया, कहते सारे इस्लामाबाद गए। मैं क्या फिर ते हुकूमत नदी होनी चाहिए थी। और आपने अपने ईमान से हुकूमत करनी है, आपने अपनी खिदमत से अपने ईमान से यीशु के नाम में आपने हुकूमत करनी है। अपने बच्चों की ऐसी तरबियत करनी है कि आने वाले दौर को आप अपनी आंखों से देखें कि आने वाले दौर से मसीहत कैसी होएगी। और इसमें आपकी मदद करते हैं आपके फादर साहबान, फादर आजम, फादर मैसम, बिशप साहब और तमाम कैटेकिस्ट जो हैं वो आपकी मदद कर रहे हैं ताकि हम खुदा के इस खेत को बचाएं और किसी को ज़बान बोने हाँ जिदों साड़ी अख बंद हो ये हमला हो जाना चाहिए। आपके बच्चे कलीसिया के बच्चे हैं और इन्हीं बच्चों ने खुदा यीशु मसीह की अंजील की गवाही देनी है। आए खुदा की बात है तो अपने घरों में बोएं और उसी से फैज जाएं। आज हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि मेरी ख्वाहिश थी, मेरे बड़े रिश्तेदार में थे अखबार टाउन और तुम शुक्र की गल दसना सारे प्रोटेस्टेंट ने मैं क्या आ गए असी आ गए कैप्चर हो अही खुदा का कलाम सुना ये प्रोटेस्टेंट कैथलिक की कोई गल नहीं है। मैं उन जिन्होंने मजाक करना मैंने कर देना। और हमारे कैप्चर फादर्स जिन्होंने आप उनके ही बेटे और बेटियां जिन्होंने पंजाब में, लाहौर में, सियालकोट में और जितना भी उधर का एरिया है वहाँ पे ईमान का बीज बोया है। मुझे आप में आपके अबौजदाद के ईमान की खुशबू आती है, प्लीज़ इसको संभाल के रखिएगा। इस खुशबू को जो आपके बाप दादा के ईमान की आप में अखबार तो में नजर आती है, इसको खोने नहीं देना। जिन को दादे परदादे खो सके उनको सब कुछ खो जाना चाहिए। थोड़ी जेबा भरियां होंगियां, थोड़े को बड़े बड़े महल होंगे, पावर होएगी, लेकिन जो अपना नहीं ना होएगा इंजॉयमेंट का कोई मजा नहीं आता। सही ते अपने अबौजदाद ईमान की खुशबू जी हमेशा संभाल के रखेंगे। ये थोड़ी विरासत है और यही थोड़ा असासा है। खुदा तुम सब को बहुत बरकत दे और हमेशा अपनी पनाह के हिफाजत रखे। साडियां दुआवां हमेशा तुहाडे नाल ने ते अपने घर दे बागां नूं ज़ुबान तो बचाना है और उस धरती नूं पाक रखना है जिस पर धरती च खुदा ने ईमान का बीज बोया। खुदा तो सब नूं बहुत बरकत दे। मसीह हमारे गुलाम के सिला से आमीन। मैं अपने सरों को झुकाते हुए खुदा की हज़ूरी को महसूस करते हुए अपनी दुआएं की बजाय मुनाजात पेश करें। हम दुआ करते हैं पापा आज़म के लिए, तमाम कार्डिनल बिशप्स के लिए, तमाम काहिनों के लिए और तमाम फादर्स सिस्टर्स काहिन
कैरिकेस और जितने भी हमारी चर्च इंतज़ामिया और हम अपने ख़ानदानों के लिए दुआ करते हैं कि खुदाया तूने इस ज़मीन पर अपनी मोहब्बत का बीज बोया, बख्श दे कि ज़मीन हमेशा तेरी मोहब्बत की फसल उगाए और बहुत सारे लोग इसी से फैज़याब हो। उससे दुआ करके अपनी कलीसिया को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता कर, ताकि वो इसी तरह तेरी बादशाहत कायम किए रखे। इस मकसद के लिए दुआ करें। हम दुआ भी करना चाहते हैं अपने मिनिस्टर जनरल फादर रॉबर्टो जेनवन के लिए, फादर विक्टोरियस के लिए, फादर किलियन के लिए और सारे काउंसलर्स के लिए और तमाम दुनिया के कैप्टन ब्रदर्स के लिए कि रहीम आसमानी बाप जो मुकद्दस फ्रांसिस और असीसी के नक्शे कदम पर चलते हुए खुदा यीशु मसीह की अंजील गरीब से गरीब तर लोगों तक पहुंचाते हैं, ताकि वो ईमान में अमीर हो जाएं और इस दुनिया की नहीं बल्कि खुदा की बादशाह में दाखिल हों। कि रहीम आसमानी बाप को अपने इन बेटों को जिन्होंने अपनी जिंदगियां तेरे नाम पर कुर्बान कर दी हैं, बख्श दे कि तेरी पनाह और हिफाजत में रहें और तेरे ही जलाल के लिए अपनी जिंदगियां गुजारें। इस मकसद के लिए दुआ करें। हम दुआ भी करते हैं मुकद्दस जॉन पॉल II पैरिश के पैरिश प्रीस्ट रेवरेंड फादर आजम सदीक, असिस्टेंट पैरिश रेवरेंड फादर मैसम इलियास और तमाम कैटेकिस्ट के लिए कि रहीम आसमानी बाप तुम इनको बहुत बरकत दे और पासबानी खिदमात में इनकी मदद और रहनुमाई फरमा और रहीम आसमान का बख्श दे कि तेरे ये काहिन बेटे जिस घर में जाएं तेरी बरकतें, तेरे फज़ाइल, तेरी रहमतें लेकर जाएं और रहीम आसमान बाप अपने लोगों के लिए ईमान की तरक्की का बाइस बने। इस मकसद के लिए दुआ करें। हम दुआ करते हैं मरियम सदीका कैपिटन कस्टडी के लिए और अपने फादर फ्रांसिस साबन के लिए, उनके तमाम तर काउंसलर्स के लिए और तमाम तर कहना बरादरी के लिए कि मेहरबान खुदा ने अपनी खिदमत और जलाल की यूं ही इस्तेमाल करें, अपनी रहमतों से नवाज़े। अज़ीज़ इस मकसद के लिए दुआ करें। हम दुआ करते हैं हासिल जमायत के लिए जो बड़े ईमान के साथ खुदा के घर में आई है कि मेहरबान खुदा इनकी शुक्रगुजारियों को कबूल फरमाए और आज खास जितने भी लोग जो है अपनी अकीदत ईमान का इजहार करते हैं कि खुदा का कलाम सुनते हुए ये खुदा की बरकतों में बढ़ते जाएं। अज़ीज़ इस मकसद के लिए दुआ करें। हम दुआ करते हैं बीमारों के लिए, खास तौर पे शकील मसीह के लिए दुआ करते हैं, रुबीना के लिए, हमाद शनाउन के लिए, तनवीर मालिक के लिए, रीसा नसीम के लिए दुआ करते हैं, रोसी बीबी के लिए, अलिस्बत के लिए, रेहाना के लिए, बरनातिब के लिए कि मेहरबान खुदा इन सबको सेहत और तंदुरुस्ती बख्शे। इस मकसद के लिए दुआ करें। हम दुआ करते हैं बेटी दुआ के लिए, नायाब के लिए, राबिब के लिए, मैसी रौनी के लिए कि खुदा इन सबको सेहत और तंदुरुस्ती बख्शे। इस मकसद के लिए दुआ करें। दुआ करें आज के मुबारक और मुक़द्दस दिन के लिए जो खुदावंद ने हम सबको देखना नसीब किया। हम तमाम घरेलू और दुनियावी कामों को छोड़कर खुदावंद की हैकल में आए ताकि खुदावंद का जलालदार कर सकें। अज़ीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। हम अपनी तमाम दुआएं इंतजाम जाते हैं खुदावंद की हुज़ूर में पेश करें। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन। तशरीफ़ Hallelujah.
کریں کہ ہماری یہ قربانی خدا قادر مطلب باپ کی حضور میں مقبول ٹھہرے. اس قربانی کو آپ کے ہاتھوں سے اپنا نام کی بڑائی کے لیے ہم دعا مانگے. اے قادر خدا، تیری ہی قائم کی ہوئی شرعی قربانیاں اس واحد اور کامل قربانی کی طرف اشارہ کرتی تھی. اپنے عقیدت مند بندوں کی یہ قربانی قبول فرما اور اسے اسی طرح پاک ٹھہرا جس طرح تو نے حابل کے نذرانوں کو پاک ٹھہرایا تھا، تاکہ جو کچھ ہم میں سے ہر ایک تجھ عظیم خدا کی عزت میں لاتا ہے وہ سب کے لیے فائدہ مند ہو. مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے خداوند اب سب کے ساتھ ہو. ہم خداوند کی طرف دھیان لگائیں. ہم خداوند اپنے خدا کا شکر کریں. یہ باقی واجب و نہایت مناسب ہے اے قدوس باپ کہ ہم ہر وقت اور ہر جگہ تیرے پیارے بیٹے کے وسیلہ سے تیرا شکر ادا کریں. وہ تیرا کلمہ ہے، اسی کلمہ کے ذریعے تو نے سب کچھ بنایا. تو نے اسے بھیجا تمہیں چھڑائے اور بچائے. وہ روح القدس کی قدرت سے انسان بنا، قواری مریم سے پیدا ہوا. اسے تیری مرضی پوری کر کے دکھ سہتے وقت اپنے ہاتھ پھیلائے تاکہ موت کو تباہ کرے اور قیامت کو ظہور میں لائے. اس لیے ہم تمام فرشتوں اور مقدسوں کے ساتھ مل کر لگاتار تیری حمد و توصیف کرتے ہیں. ہماری دعائیں قبول فرما. پاک روح کو بھیج تاکہ یہ نذرانے پاک اور متبرک ہوں اور ہمارے خدا یسوع مسیح کا پاک بدن اور خون بنے. اسے دکھانے کے لیے تیار ہو کر اپنے آخری کھانا کے موقع پر روٹی دی. اس نے شکر کیا، روٹی توڑی اور یہ کہہ کر اپنے شاگردوں کو دی کہ تم سب اس میں سے لو اور کھاؤ. یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جائے گا. اسی طرح اس نے کھانے کے بعد مے کا پیالہ بھی دیا. اس نے دوبارہ شکر کیا اور یہ کہہ کر پیالہ اپنے شاگردوں کو دیا کہ تم سب اس میں سے لو اور پیو. نئے اور ابدی عہد میں یہ میرے خون کا پیالہ ہے جو تمہارے بلکہ بہت سے لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جائے گا. میری یاد میں یہی کیا کرو. ہمارے ایمان کا بھید
मेरे पास बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुदस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप फ्रांसिस, हमारे बिशप जोसेफ अर्शद और अपने सब हाकिमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, इसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे भाइयों और बहनों पर भी नजर कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीज तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ हमारी मरियम, मुबारक रसूलों और उन सब मुकद्दसों के साथ इस जहान में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की जिंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमदो सना कर सके। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में इस खुदा बाप को रूह कुदस की वहदानियत में कामिल इज्जत और ताज़ीम शयान है, हमेशा से हमेशा तक। आमीन। आइए पूरे भरोसे और इत्तेकाद के साथ उसी तरीके से दुआ करें जो हमारे आसमानी बाप ने हमें सिखाई। है हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिस पर हम तू हमारे कर्ज हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हुए सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि तेरी शफ़क़त की तौफीक से हम अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। उनके बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा रहे। आमीन। ऐ खुदा, यीशु मसीह तूने अपने रसूलों से कहा, मैं तुम्हारे पास शांति छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर और उसे वो मुताबात बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। और खुदा यीशु से जिंदा खुदा उनकी सलामती आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। आइए दूसरे की सलामती चाहें। मसीह के बदल खून का मलाया जाना पाश करने वालों को हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखे। आमीन। ऐ खुदा के बर्रे जान के गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बरे तू जहान के गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बरे तू जहान के गुनाह उठा ले जाता है, हमें शांति आए कर। और यह है खुदा का बड़ा खुदा यीशु मसीह, बाप का बेटा जिसने अपने आप को कुर्बान कर दिया ताकि हर कोई उसके बदन को खाए और लहू को पिए और जिंदगी पाए, बल्कि कसरत की जिंदगी पाए। और मुबारक है आज हम सब जो इसी बड़ा की ज़ियाफत में बुलाए गए हैं। मसीह का बदन और खून पाश करने वालों को हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखते हैं। हमारे लिए इंतहाई खुशी की बात है कि आज हमारे साथ पांच फादर जो हैं वो पाक मास की कुर्बानी गुजरान से हैं। तो हम अपने अजीज मेहमानों को आपकी भरपूर तालियों में वेलकम करते हैं और ये हमारे बहुत ज़्यादा बरकत और खुशी की बात है कि इतनी दूर से हमारे पुलिस जो है वो हमारे साथ यहाँ पर आए और यहाँ पर उन्होंने हमारे लिए पाक मास की पाक कुर्बानी गुजरानी। Now I would like
to call a friend, Reverend Father Kilian. He will come and he will express his views about the Pakistani Christian community. So with a round of applause, आप सबकी भरपूर तालियों में हमारे सामने आने की दावत देते हुए तो वो सामने आएंगे और अपना इस हमारे ख्याल जो है वो पेश करेंगे. जैसे कि आपको मालूम है कि उन्हें उर्दू नहीं आती तो उनके जो अल्फाज हैं उनको तर्जुमा किया जाएगा. I will translate for you, Father. Good morning, my dear brothers and sisters. आप सबको शुभ सलाम. Clap for yourselves. I feel at home here just from the reception you gave us and seeing many of you coming to praise and thank God. I just feel happy inside. वो कह रहे हैं कि मैं घर की तरह महसूस करता हूँ कि आप सब ने बड़े ही शाहाना अंदाज में बाहर से चर्च के बाहर से इस्तकबाल किया और अभी चर्च में आप बैठे हैं सब. It reminds me of the time when I was still back in my country, Cameroon, and the way the Christians will come and fill the church and pray. ये मुझे इस बात की याद दहानी करवाते हैं कि जब मैं अपने मुल्क कामरून में था और जिस तरह जो है वो खुदा की हज़ूरी में दुआ के अपने सर को झुकाते थे. I want to thank in my name and the name of my brother Pretorius in a special way the choir and all their instruments and all the singers and the men who lead us in this prayer. वो कह रहे हैं कि मैं अपनी तरफ से और ब्रदर विक्टोरियो की तरफ से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, खास तौर पे क्वायर का जिन्होंने बहुत ही रूह परवर गीत गाए और आज की इस इबादत को जो है रूहानियत बख्शी. When we live in Rome, we miss this great animation. Our prayers with the white man country in Rome are very boring. मैं रोम में रहते हुए ये सब जो खासतौर पे ये कल्चर की जो इबादत में आपकी अपनी ज़ुबान में अदा की जाती है उस लिहाज से जो है ये रोम में जो है एक स्पेसिफिक कैनोनिकली इबादत होती है और इस लिहाज से वो कहते हैं कि मुझे वहाँ पे कई दफ़ा बोरिंग होती है. I am also deeply happy with the time you take in preparing for the Sunday liturgy, and I thank in a more special way my two brothers who work together with you so that we may thank God in an effective way. वो हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं खास तौर पे तमाम तर इबादत का एहतमाम जो नतूरिया तौर पे किया गया है और आप सब ने जो है आज की इस इबादत को खास तौर पे तैयार किया. आप सबके लिए शाबाश. When I look at you, I see that many people do lots of sacrifices. The mass boys, the parishioners, and every other person. I can see different functions, and I can also see how they are coordinated. This needs patience, it needs time, and it needs work on your part. Thank you very much. वो कह रहे हैं कि मैं देख रहा हूँ कि आप सब बहुत ही कुर्बानी देते हुए यहाँ पे भी आए हैं और इस तमाम तक इबादत को जो है बड़ी जांफशानी से और आला ज़र्फ़ी से तैयार किया है और इसके साथ आप सब की कुर्बानी है और आपका वक्त देना है कि आप सब खुदा के घर में हैं, इसलिए वो आपका शुक्रिया अदा करते हैं. Being in Pakistan, surely the superior Francis told you is the first chance for us to have mass with the locals. We are deeply grateful. I did not expect to see so many people praying with faith. And I thought I would find 10 people, not this number. So we thank God for you. वो खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि सबसे पहली दफ़ा पाकिस्तान में आए हैं और उन्होंने जो है एक बड़े लोगों के ईमानदारों की जमात को देखा है. वो सोच रहे थे कि शायद को 10-15 लोग होंगे, लेकिन जो है एक
ईमानदारों की जमात यहाँ पे इस चर्च में आज जमा हुई है ताकि आज इस इबादत में शामिल हो सके। So thank you very much, and we keep on united in prayer. I will beg you to pray for us as we try to do the work of God from the other side, while we pray also for you people that you may be united and you may keep the faith growing and testify, even in a difficult situation, that God is great. वो आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप सब अपने ईमान को संभाले हुए हैं और वो इस कहते हैं कि ये खुदा की तरफ से बरकत है कि आप सब अपने ईमान को संभालते हुए आगे बढ़ते जाएं और इस तरह वो दुआ में हमारे साथ हैं ताकि हम जो है अपने ईमान की गवाही इस धरती पर देते रहें। Thank you very much, and thank you for the warm and happy reception. आप सबका शुक्रिया। God bless you. सबसे पहले मैं खुदा बाप का शुक्र अदा करता हूँ आज के दिन के लिए कि जिसने हम सबको आज का ये दिन बख्शा कि हम सब जो है खुदा के घर में आ सके। I would like to thank God Almighty who has given us this beautiful day to come in church at the same time to have a glorious holy mass along with our distinguished guests, especially our friar, Brother Victorious, who is a German definitor and has been recently appointed a bishop in Indonesia. At the same time, I would like to take this opportunity to thank Brother Killian who is here among us. He is in charge of all the seminaries of the Capuchin Friars Minor. So, dear Brother Killian, I am very much privileged. I also had a thesis with you in Rome. So, when I was doing the master in formation, जब मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था रोम में, तो ब्रदर किलियन जो थे वो मेरे थीसिस के इंचार्ज थे जिन्होंने जो है मेरे बहुत ज़्यादा मदद और रहनुमाई भी की और ख़ासतौर पे पॉन्टिफिकल यूनिवर्सिटी अंतरियाना में जो है ये प्रोफेसर हैं और इसके साथ साथ मेरी फॉर्मेशन में भी इनका बहुत बड़ा हाथ है। So dear brother Killian, I am very much pleased and our faithful, we are very happy to have you here. When you were guiding me in the master in information at the same time in the subject of master in spirituality. So, I thank our beloved brother Father Francis Saber who is Augustus. खुदा ने इन्हें जो है ये फसल बख्शा है कि खुदा ने इन्हें चुना है, बुलाहट अता की है और आज का कलाम जो है फादर जी ने आपकी तालियां बताएंगी कि किस तरह जो है हमारी जिंदगी से मिसालें देते हुए जो है फादर जी ने जो है आज का खुदा का कलाम सुनाया। फादर फ्रांसिस साहब जो है पाकिस्तान में कैपुचिन यूथ के साथ भी काम करते हैं, नौजवानों के लिए जो है बड़ी ही जांपशानी और आला सरफी का मुसारा करते हैं और उन्हें हमेशा जो है खुदा की खिदमत के लिए उजागर करते हैं। इसके साथ साथ ये बहुत ही खुदा के कलाम को बयां करने वाले, शोला बयां तबलीग करने वाले हैं और इसके साथ साथ चर्च के कामों में जो है बढ़ चढ़ कर हमेशा जो है अपनी खिदमत से अंजाम देते हैं। सो डियर फादर फ्रांसिस साहब, we are very happy to have you here. At the same time, this is a blessing for us all, for that three angels, as three angels, they have come here among us. तीन फरिश्तों जो जैसे इब्राहिम के पास आते हैं तो जो है इसी तरह हमारे पास भी जो है फादर फ्रांसिस साहब, ब्रदर विक्टोरियस और जो है फादर किलियन जो है, ब्रदर किलियन जो है ये हमारे दरमियान मौजूद हैं। तो हम जो है इनका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। At the same time, I would like to thank all the other groups, those who have participated actively. मैं इसके साथ साथ उन तमाम तर ग्रुप्स का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने बड़ी जांपशानी से जो है आज के चर्च के इंतजामात को संभाला है, खासतौर पे क्वायर जिन्होंने बहुत ही परवर गीत गाए हैं। आप सबकी भरपूर तालियों में क्वायर का शुक्रिया। I thank choir, then teachers, catechism teachers, जिन्होंने जो है बच्चों के लिए टैबलो तैयार किया और वेलकम की जिम्मेदारियों को संभाला। ऑल्टर सर्वर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ
اور آج کے میڈیا کوریج جو کر رہے ہیں نائب اور ان کے ساتھ عادل ہے کہ کیمرہ مین کی فرائض سر انجام دے رہے ہیں، اپنے تمام تر سیکیورٹی گروپس کا جنہوں نے جو ہے بہت ہی ایکٹیولی بہت ہی جو ہے اعلیٰ ظرفی سے جانفشانی سے پینافلیکس کو تیار کیا اور پھر اس کے بعد جو ہے باہر چرچ کی سیکیورٹی کے انتظامات سنبھالے ہوئے ہیں۔ اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت ہی نازک حالات چلتے رہتے ہیں کہ آئے دن جو ہے چرچز کو بھی جو ہے کئی دفعہ جو ہے وارن کیا جاتا ہے کہ اپنی چرچ کی سیکیورٹی کو اچھی طرح دیکھا جائے، تو میں خاص طور پہ اپنی چرچ سیکیورٹی کا بھرپور تعلیم میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی اشر گروپس کا بھی، اور ایٹ لاسٹ ناٹ دا لیسٹ، ہاں سب سے آخر لیکن جنہوں نے سب سے زیادہ محنت کی ہے، میں بابو صاحب کا، بابو یعقوب کا اور بابو ایمینول کا آپ سب کی بھرپور تعلیم میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جتنے بھی لوگ جو ہے اظہار عقیدت کرنا چاہتے ہیں وہ سامنے قطار کی صورت میں آ جائیں۔ جو ہمارے گروپس ہیں وہ فارغ صاحبان سے اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کرتے ہوئے سامنے آئیں گے۔ ہمارے آلٹر بوائز کا گروپ ہے، اس کے ساتھ کوآپریٹو سوسائٹی کے صدر جناب ارشد قادر صاحب جو ہیں وہ فادر فاجی کو ہاتھ پہنائیں گے، فادر جنرل کو ہاتھ پہنائیں گے، اور ان کے ساتھ ساتھ چرچ سیکورٹی کی طرف سے اقبال تارا صاحب سیکورٹی گروپ کی نمائندگی کرتے ہوئے فادر ٹیرس کو ہاتھ پہنائیں گے۔ جناب اقبال صاحب سامنے آ جائیں۔ اشر گروپ کی طرف سے بھی فادر فرانسس عامر صاحب کو وہ ہاتھ پہنائیں گے۔ اشر گروپ ہمیں آئیں گے اشر گروپ کی نمائندگی کرتے ہوئے۔ اور ان کے ساتھ بھائی ستار صاحب سامنے موجود ہیں، آپ آ جائیں پلیز، آتے جائیں۔ بھائی ستار صاحب، بھائی نسرین، ہم دعا مانگیں۔ اے خداوند ہمارے خدا، مہربانی سے اپنے لوگوں کی مدد کر، تو نے آسمان کی بیش قیمت نعمتوں سے انہیں معمول کیا ہے، بخش دے کہ وہ پرانی زندگی چھوڑ کر نئی زندگی اختیار کریں۔ آج تو سے التجا کرتے ہیں ریورنڈ فادر اعظم کے لیے، محسن کے لیے، تمام ناصحبان کے لیے، اور اقبال ٹاؤن پیرش کی تمام کلیسیا کے لیے، خاندانوں کے لیے۔ آسمانی باپ، ہمارے خاندانوں کو اپنی پناہ اور حفاظت میں رکھنا، ہر طرح کی شیطانی قوت سے، ناگہانی آفت سے، مصیبت سے ہمارے بڑوں کو، ہمارے بچوں کو، بیٹوں بیٹیوں کو بچائے رکھنا، اور بخش دینا کہ ایمان کا اور کلام کا بیج ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دلوں میں، ہمارے گھروں میں بڑھے اور پھلدار ہو۔ تو سے التجا کرتے ہم سب کو بہت برکت دے، اور آج تیرا شکر ادا کرتا ہوں ان کی محبت کے لیے جنہوں نے اپنے کاہنوں کے لیے اور اپنے بیٹوں کے لیے ظاہر کی ہے۔ بخش دے کہ کلیسیا ایمان میں مضبوط رہے، اور اپنے ایمان کا نذرانہ اپنے کاہن بیٹوں کی صورت میں تیرے پاک التار پر چڑھاتے رہیں، تاکہ یہ التار کبھی خالی نہ ہو اور برہ ہمیشہ ہمارے لیے قربان ہوتا رہے اور ہمیں زندگی دیتا رہے۔ ہم سب کو بہت برکت دے آج کی اس عبادت سے، جو بھی ہم نے توفیق حاصل کی ہے، قوت پائی ہے، ایمان کی مضبوطی پائی ہے، بخش دے کہ وہ ہماری زندگیوں سے ظاہر ہو مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے۔ آمین۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو، اور قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کی برکت آپ سب پر نازل ہو اور اب تک قائم رہے۔ آمین۔ عبادت ہو چکی، سلامتی اور خوشی سے رخصت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ ایک بار پھر آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ۔